Good morning, students. Today's topic is combination of registers. Although this topic has been deleted from the syllabus for session 2020-21, yet I am taking this topic in brief. Uh, there are two types of combination of registers: series combination and parallel combination. So we have three registers R1, R2 and R3. These registers are joined in series. A battery or cell of EMF V is connected across the series combination. The total resistance between point A and point B is R1 plus R2 plus R3. So when resistors are joined in series, the resistances are added. Uh, for example, you have a three tanks. Its capacity is 30 लीटर वाटर टैंक्स हैं इसकी 20 लीटर कैपेसिटी एंड इट्स कैपेसिटी इज say 50 liter. So these three tanks they store 100 liter of waters together. तो इसी तरह these three resistors they are offering resistance to the flow of electric current. तो अगर जैसे यहाँ पे these three water tanks can store 100 liter water. So अगर if I want to replace these three tanks, I can replace these by a single tank of capacity 100 liter. So single tank of capacity 100 liter is called equivalent tank. उसकी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटी है टू स्टोर वाटर इज इक्विवेलेंट टू these three tanks. Similarly, these three resistors are offering resistance to the flow of current. Now, this single resistor, when connected across this same cell, यही सेल इन तीनों को if you remove and replace these three resistors by the single resistor whose resistance is Rs. And if you find the same current is drawn from the cell, here I current was drawn when these three were connected in series, और यहाँ पे इन तीनों के बजाय I am using single resistor और इसकी resistance R subscript S है where S stands for series combination. तो whether you join these three resistors in series or the single resistor, यहाँ भी आई करंट निकलता था इस सेल से और यहाँ भी आई करंट निकलता था. तो दिस सिंगल रजिस्टर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रजिस्टर. सो दिस आर एस इज इक्वल टू R1 plus R2 plus R3. So if this is of 20 ohm, 30 ohm R2, this is 50 ohm. So total resistance is 100. So you can remove these three resistors and connect a single resistor of 100 ohm. The same current will be drawn by the combination. In series combination, some important points. Current flowing through each resistor is same. ये I करंट निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ पे इसमें आई जाएगा, फिर वही करंट इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा. So same current will flow through resistor when they are joined in series. If resistor are having same resistance, then Rs is R plus R plus R. This is 3R. So if you have 4 resistors, तो यहाँ 4R आ जाएगा. If you have n resistors, then it will be nR total resistance. Now parallel combination. These are three resistors. They are joined in parallel, having resistance values R1, R2, and R3. Say I current is drawn from this cell.
और ये आई करंट यहाँ पे 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। इस तरफ I1 करंट गया, इधर I2 करंट गया, इधर I3। ये कुछ ऐसा है, सपोज यहाँ से कार्स ट्रैफिक आ रही है और यहाँ पे जंक्शन, ये 3 सड़कें आ गई, एक इधर जा रही है रोड, एक इधर एक इधर। सो कुछ कार्स इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। सो दे विल स्प्लिट। अब कौन से रजिस्टर से ज़्यादा करंट जाएगा? ये यहाँ पे डिवाइड हुआ करंट ए पे, ए इज जंक्शन, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी इन तीनों में से, उससे सबसे ज़्यादा करंट जाएगा। और जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उससे कम करंट जाएगा। देन ऑल दीज 3 करंट्स दे विल कंबाइन हेयर, और बी पे फिर से टोटल करंट आई बन जाएगा और आई करंट नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। इफ इट इज positive 5, this is negative 5 volt. So this point is at positive 5 potential, this point is at negative 5 because B is connected to the negative terminal of minus 5 volt and A is connected to पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 5 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल 5, इसका -5। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी इज 10 वोल्ट। सो R1 का ये किनारा पॉजिटिव 5 वोल्ट, R1 का सेकेंड एंड ये -5। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज 10 वोल्ट। सिमिलरली इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट। सो इन parallel potential difference across each register is same, and we can replace all these 3 register with a single register। इन तीनों को हटाओ, इस अकेले को लगा दीजिए और फिर से करंट उतना ही निकल रहा है सेल से जितना पहले निकल रहा था। तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रजिस्टर। सो कैसे निकालनी है इसकी वैल्यू? आर पी 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। So if these are of identical value, then it will be 1/RP is equal to 1/R plus 1/R plus 1/R. So 1/RP is 3/R, or RP is, take reciprocal, it is R/3. So if there are 4 resistors, तो R/4 हो जाएगा, 5 then R/5, if N, so R/N. So in parallel resistance decreases। अगर ये 30 30 30 के हैं तो ये सिंगल रजिस्टर इट शुड बी 30/3 10 ओम का। तो ये जितना करंट यहाँ ड्रा कर रही थी ये कॉम्बिनेशन, ये 30 30 30 ओम के थे, तो यहाँ पे मैं 10 ओम का लगाऊंगा तो फिर से उतना ही करंट ड्रा किया जाएगा। सो इट इज़ इक्विवेलेंट रजिस्टर। नाउ सम न्यूमेरिकल्स। दीज आर 3 रजिस्टर और हर एक की वैल्यू जो है इट इज़ 30 ओम। व्हाट इज़ द टोटल और इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? तो सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि वेदर दीज आर इन सीरीज और पैरेलल। व्हेन रजिस्टर आर इन पैरेलल, इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड एट वन पॉइंट और अदर एंड एट सम अदर पॉइंट। तो इसमें देखिए R1 का एक किनारा ए पे है, दूसरा बी पे है। R2 का भी एक किनारा ए पे, दूसरा बी पे। सिमिलरली R3 का लेफ्ट एंड यहाँ पे और राइट एंड यहाँ पे। सो दे आर इन पैरेलल। इफ यू लुक एट दिस फिगर केयरफुली, R1 का एक किनारा ए पे जुड़ा हुआ है, दिस एंड लेफ्ट, और R1 का सेकेंड एंड जो है यहाँ से तार जा रही है डी से और ये बी पे जुड़ गया। So one end of R1 is at A and second at B. Excuse me. Similarly, R2 का ये वाला किनारा, this is R2, this end of R2, ये यहाँ से वायर से जुड़ के ये B पे चला गया, और ये वाला किनारा राइट एंड ये यहाँ से तार से जुड़ा हुआ है और ये ए पे जुड़ गया। सो वी कैन से R2 का भी एक एंड ए पे है, दूसरा एंड बी पे है। सिमिलरली R3 का एक एंड बी पे है और ये वाला किनारा जो है लेफ्ट, ये इधर ए पे जुड़ गया। सो दीज 3 रजिस्टर आर इन पैरेलल।
So if they are in parallel, तो 1/RP is 1/30 plus 1/30 plus 1/30. So या यहाँ से देख लीजिए RPs अगर हर एक रजिस्टर की वैल्यू सेम हो तो 30/10 इट इज RAB is R/3. This is 30/3 10 ohm. Now another question. Calculate effective resistance of this combination of resistor between point A and D, and second part is between A and C. तो पहले A और D के बीच में, तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि A और D के बीच में मैंने एक सेल लगा दी या बैटरी लगा दी फॉर कन्वीनियंस. तो ये बैटरीज ज्वाइंट एट, चलिए पहले A और C के बीच में निकालते हैं. फर्स्ट ए और सी, इस पार्ट को किया जा रहा है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड सी पॉइंट. इमेजिन के सेल इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी. वन टर्मिनल ऑफ द सेल एट ए, अदर टर्मिनल एट सी. यहाँ से आई करंट निकला. ये आई करंट यहाँ पे 3 पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगा. सो जो करंट इसमें जाएगा 3 ओम वाले में, उतना ही करंट सारा 7 वाले में जाएगा. देयरफॉर दे आर इन सीरीज. जो करंट यहाँ इसमें जाएगा 10 वाले में, वही इसमें जाएगा. सो देयरफॉर ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में. इफ़ दीज टू आर इन सीरीज तो इनकी रेजिस्टेंस टोटल 3 + 7 10. तो अब इस पूरे रास्ते की रेजिस्टेंस 10 ओम है. तो आप इन दोनों के बजाय एक रजिस्टर लगा सकते हो इस रास्ते में, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ. एक्सक्यूज मी. तो आई एम रिप्लेसिंग दीज 2 रजिस्टर बाय सिंगल रजिस्टर और इक्विवेलेंट रजिस्टर. उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम. तो मैंने इस रास्ते में बी और सी के बीच में लगा दिया. बी सी के बीच में बजाय ए बी के बीच में. यहाँ भी लगाया जा सकता है. सिमिलरली इस पाथ की रेजिस्टेंस इट इज़ 15. तो 15 का चाहे यहाँ लगा दीजिए ए और डी के बीच में, इस रास्ते में कहीं भी लगा दीजिए. तो मैंने 15 का लगा दिया. नाउ इफ यू लुक केयरफुली, दीज 3 रजिस्टर आर इन पैरेलल. इस 10 ओम के रजिस्टर का ये वाला किनारा ए पे, सेकेंड एंड ऑफ दिस रजिस्टर इज एट सी. सिमिलरली इसका वन एंड एट ए, अदर एट सी. इसका भी 15 ओम वाले का एक ए पे एक सी पे. सो दीज आर इन पैरेलल. सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, अब ये ए और सी पे जुड़े हैं तो हम ए और सी पे एक रजिस्टर लगाते हैं इन तीनों के बजाय, और ये लगा दिया मैंने अकेला. एंड दिस आर ए सी कैसे निकलेगा? 1/10 plus 1/10 plus 1/15 is 1/RAC. So you solve it, it is 15/4. Now second part, equivalent resistance between A and D. So suppose now battery is connected between point A and D. यहाँ से again I current is drawn by this combination of resistor. Here this current will divide, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा. लेकिन जो करंट इसमें जाएगा वो सारा करंट इसमें जाएगा. सो दीज 2 रजिस्टर्स आर इन सीरीज. सो ये दोनों सीरीज में. लुक ओनली एट दिस सेक्शन. सो इन दोनों की 10, तो इसमें यहाँ 10 लगा दो या यहाँ 10 लगा दो दोनों के बजाय. तो मैंने यहाँ लगा दिया 10. सो ये बन गया हमारा कॉम्बिनेशन. नाउ इफ़ यू लुक केयरफुली, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस 10 ओम के रजिस्टर का लेफ्ट एंड यहाँ पे, राइट यहाँ पे. इस ऊपर वाले 10 का भी एक किनारा सी पे, दूसरा ए पे. सो दीज 2 रजिस्टर आर इन पैरेलल. सो रेजिस्टेंस विल बी 10/2. आइडेंटिकल रजिस्टर होते हैं तो हम जितने रजिस्टर उससे डिवाइड करते हैं वैल्यू. सो इन दोनों की मिला के इट इज़ 5. और इनके किनारे जो है ए और सी पे जुड़े थे, तो हम दोनों के बजाय सिंगल रजिस्टर लगा देंगे 5 ओम का, और उसके किनारे भी ए और सी पे होनी चाहिए. तो दिस द सिंगल रजिस्टर, इसके किनारे ए और सी पे जुड़े. नाउ अगेन आई करंट, ये करंट यहाँ गया और यहाँ से गया बैटरी.
this current which is passing through 5 ohm resistor, the same current will go through this resistor. So these two resistors are in series. So total resistance इस रास्ते की it is 5 plus 5 10. So इस रास्ते में आप अकेला रजिस्टर 10 ओम का लगा दीजिए, चाहे ए और सी के बीच में, चाहे सी और डी के बीच में. So I replace these two resistor by a single resistor of 10 ओम, और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया ए और सी के बीच में, इसको छोड़ दिया रास्ते में. Now these two are in parallel, ए पे जुड़े हुए, इस ऊपर वाले का ए पे किनारा और दूसरा किनारा डी. सिमिलरली ये दूसरा ए पे और डी पे. सो दीज आर इन पैरेलल. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5. सो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. नाउ द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछा जाता है. दीज आर 5 रजिस्टर विच आर जॉइंट. This diagram and this diagram and this diagram, all these three are different forms. इसमें देखें तो सभी equivalent है. See, here R1 is connected between A and B. The ends of R1 are connected at A. This left end is at A, right is at B. इसमें भी R1 का A और B पे जुड़ा हुआ है किनारे. Now R2 की बात करते हैं. R2, A and C. Here R2, 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 A and C. Here R2, A and C. R1, A and B. Then R3, B, D, R3, B and D. R3, B and D. Then R4, C and D. R4, C and D. Here R4, C and D. R5, CB. R5, 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 CB, R5, CB. So these are different forms, and such an arrangement of 5 register is called Wheatstone bridge. It is the name of physicist who discovered it. So जैसे if suppose ये एक town है B, this is the C town. So this R5 is acting as a bridge between B point and C point. ये पुल हो गया इन दोनों के बीच में. And these registers are called arms of 4 arms, R1, R2, R3, R4. These are called 4 arms of Wheatstone bridge. So जब कभी 5 रजिस्टर आपको कनेक्ट किए हुए दिए जाएं तो आप एक बार ये ज़रूर चेक करेंगे कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है, और नॉर्मली इट विल बी ए व्हीटस्टोन ब्रिज. Now the values of these registers are given. So if a ratio of this and this resistance, R1 or R2 की ratio, if it is equal to R3 or R4 की ratio, then this bridge is said to be in balanced state. This is 4 ohm, this is 2 ohm. So what is your R1 by R2? R1 by R2 is 4 upon 2 is 2. R3 upon R4. R3 is given 6 ohm. R4 is given 3 ohm. So this is also 2. So R1 upon R2 is equal to R3 upon R4 is equal to 2. So अगर ऐसा हो, if this condition is satisfied, that is ratio of R1 and R2 is equal to ratio of R3 and R4, then this bridge is said to be in balanced state. Bridge is said to be in balanced state, and under such conditions जितना इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा उतना ही इस पॉइंट का पोटेंशियल. इफ दिस पॉइंट इज एट 5 वोल्ट, इस बिंदु का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट ही होगा. So there is no potential difference between B point and C point. Therefore, no current will flow through R5. जैसे heat can flow if there is temperature difference. Fluids can flow if there is pressure difference. Similarly, current can flow if there is potential difference.
but the potential of B point and C point is equal, therefore इससे कोई करंट नहीं जाएगा. If no current flows through it, then this resistor can be removed without affecting the overall resistance of this combination. If we have 5 water tanks, एक वाटर टैंक में पानी जाता ही नहीं है, तो अगर हम उस टैंक को रिमूव भी कर दें तो भी पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा. पहले भी 4 ही टैंक में पानी जा रहा था, 5th में नहीं जाता था, तो जिसमें नहीं जा रहा था पानी, यू कैन रिमूव दैट विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी. तो बिल्कुल ऐसे ही नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, सो इसकी रेजिस्टेंस हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सो इट कैन बी रिमूव्ड. वी विल प्रूव लेटर ऑन इन द सेम चैप्टर कि क्यों इनका पोटेंशियल सेम होता है. तो ये बाद में हम बताएंगे आपको, बट फॉर द टाइम बिंग यू रिमेंबर कि पोटेंशियल ऑफ बी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी, एंड कब, व्हेन रेशियो ऑफ R1 and R2 is equal to ratio of R3 and R4. Then this point and this point B and C are at same potential, so no current will flow through R5, so it can be removed. So if I remove this resistor जो R5 था, तो our diagram will look like this. So R5 मैंने यहाँ से निकाल दिया. Now if you look carefully, ये if I connect battery between A and D, then it is very easy to see कि if I current is drawn, तो ये I current it will split into 2 parts at A. Part of I will flow through this branch and rest of it will flow through another branch. So जो करंट इसमें जाएगा 4 ओम वाले में, वही करंट सारा इसमें जाएगा. तो सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R3, सो दे आर इन सीरीज. सिमिलरली इसमें भी जितना करंट जाएगा I2 वो सारा करंट इसमें, सो दे आर ऑल्सो इन सीरीज. सो इन दोनों की रेजिस्टेंस 4 + 6 10 ओम. तो इस ब्रांच की इस साइड की रेजिस्टेंस टोटल मिला के 10. सो यू कैन कनेक्ट अ सिंगल और इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ 10 ओम, चाहे ए और बी के बीच में या बी और डी के बीच में, इस रास्ते में कहीं भी लगा दीजिए. सिमिलरली इन दोनों की रेजिस्टेंस 2 + 3 5. सो वो चाहे तुम यहाँ पे लगा दो इस रास्ते में या यहाँ लगा दीजिए, तो ये सिंगल रजिस्टर. आई हैव रिटन इट 2 and 4. 2 4 means it is replacing register R2 and R4. Similarly I have written here R13, which indicates that it is replacing R1 and R3. Then look carefully, these are in parallel. See the ends of R13, one end is here, other end ये तार से इधर D पे हो गया. Similarly R24 का one end is at A, other is at D, so they are in parallel. So if they are in parallel, so we can replace these two resistor by single resistor, और उसकी resistance 1/RAD, A और D point के बीच में resistance, this is equal to 1/R13 plus 1/R23. If you simplify, it will be RAD is equal to this, R13 into R24 divided by R13 plus R24. सो इन सिंपल वर्ड्स, आपको जब भी दो रजिस्टर पैरेलल में जोड़े हुए दिए हों तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो, तो यू मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस. So it is 10 into 5 divided by 10 plus 5, so it is 10/3 ohm. Now another very interesting question. We have these resistor and capacitor. कैपेसिटर में बीच में वैक्यूम होता है दोनों प्लेट्स के. वैक्यूम से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, दे कैन फ्लो थ्रू कंडक्टिंग मीडियम एंड एयर इज बैड कंडक्टर.
सो अगर इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ से आगे देयर इज़ नो पाथ, सो करंट विल नॉट फ्लो. सो सपोज आई करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी. सो यहाँ पे देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ करंट, कि कुछ करंट ऊपर चला गया कुछ इधर चला गया, बट नो करंट कैन फ्लो थ्रू द कैपेसिटर. सो वी कैन से ये जो है हमारी, इसमें भले ही एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए आप. So no current will flow through this arm of the circuit, so it can be removed because current does not flow through the resistor, क्योंकि यहाँ पे there is no connection between these two plates. So when you remove this, the circuit will look like this. These two resistors are in parallel. So if they are in parallel, so their resistance can be calculated. So resistance between A and B will be equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. So it is 3 into 2 divided by 3 plus 2, it is 1.2. So I have replaced these two resistors by a single resistor of 1.2. तो चाहे इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगा दो या इस सिंगल का लगा दो, करंट या रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो इसकी 1.2 ये सीरीज़ में होंगे. आई करंट गया यहाँ से और वही आई करंट सारा यहाँ से. सो दीज टू आर इन सीरीज. सो इनकी रेजिस्टेंस 1.2 प्लस 4.8, इट विल बी 6. तो ओम्स लॉ से आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. सो कितना है 6 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस 1.2 प्लस 4.8. सो करंट इज 1 एम्पेयर. सो 1 एम्पेयर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल. ये 1 एम्पेयर करंट यहाँ से जाएगा. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, ओहम्स लॉ. दिस इज V इज इक्वल टू IR. दिस इज अ रजिस्टर. दिस पॉइंट इज A, दिस इज B. दिस इज रेजिस्टेंस AB. सो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. सो अगर इसका पोटेंशियल सपोज इट इज 6 वोल्ट, इट्स पोटेंशियल इज सपोज 1 वोल्ट. इधर करंट जा रहा है तो पोटेंशियल विल डिक्रीज. This point will be at higher potential, this is at lower potential. So there is a potential difference across the ends of this resistor. So Ohm's law से हम ये potential difference calculate करते हैं. We write it V, but this is potential difference between the ends of resistor. You may write VA minus VB. Now it is the potential difference between ends of this resistor, or you may write it VAB, or you may write it only V. So this V stands for potential difference between point A and point B, which are ends of resistor. This is equal to current जो इस resistor से flow कर रहा है multiplied by resistance. So this is Ohm's law. तो in light of this, the potential difference between A point and B point, ये करंट जा रहा है तो A विल बी एट हाई पोटेंशियल. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VAB और VA माइनस VB इज इक्वल टू, इसमें करंट जा रहा है I1. आई एम सॉरी, करंट इज I करंट इज पासिंग थ्रू दिस रजिस्टर. और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D, ये यहाँ से करंट आया तो ये इधर जा रहा है इस तरफ, तो C will be at high potential, D at low potential. So similarly potential difference between C and D और VC minus VD is equal to current जो इसमें जा रहा है multiplied by V RCD. So this is 1.2 volt, ये आ जाएगा हमारा 4.8. Now again one more thing, applied potential difference. I am drawing simple diagram here. This is combination of two resistor. This is say 6 volt. So if इन दोनों पॉइंट के बीच में से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, मैंने क्या किया, इस रजिस्टर को यहाँ जोड़ दिया, यहाँ ले आया, यहाँ के बजाय इधर लगा दिया इसके साथ. सो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 वोल्ट, इन दोनों पॉइंट के बीच में 4.8. सो 6 volt will be equal to 1.2 plus 4.8. So meaning thereby applied potential difference means इसकी voltage
is equal to potential difference between AB plus potential difference between CD. This is very important. So this sum of potential difference will be equal to applied voltage. Now then after this, then again very important, ये A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. तो चाहे ए बी के बीच में इस अकेले को लगा दो या ए बी के बीच में इन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो, वी कैन से जितनी ये दोनों मिलकर रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उतनी ही ये अकेला रेजिस्टेंस ऑफर करता है. सो आई कैन से कि इधर यू कनेक्ट दिस सिंगल रजिस्टर बिटवीन ए एंड बी और यू कनेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू रजिस्टर बिटवीन ए एंड बी. जितनी इन दोनों की रेजिस्टेंस है दोनों मिला के ऑफर करते हैं उतनी ही अकेला ऑफर करता है. सो जब तक रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं चेंज करेगी दो पॉइंट्स के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में नहीं चेंज करेगा. So if you look, the ends of R1 are connected at A and B. A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 1.2 है. यहाँ भी और B के बीच में 1.2 और यहाँ भी A और B के बीच में 1.2. So for this register I can write for R1. R1 के end जो है they are at A and B. So potential difference between A and B if I consider this, इसमें से I1 करंट गया है और इसकी रेजिस्टेंस R1. ये करंट आई था ये इसमें यहाँ डिवाइड हो गया, एक हिस्सा ऊपर की तरफ से गया और एक हिस्सा इधर से गया और यहाँ पे फिर ये दोनों करंट इकट्ठे हो गए और आई बन गया. सिमिलरली VAB अगर मैं नीचे वाले रजिस्टर को लेता हूँ तो दिस इज I2R2. इसके किनारे भी A और B पे जुड़े हैं तो इसके दोनों किनारों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 वोल्ट होगा या VA माइनस VB. So in light of this we can say this is 1.2 volt, this I am to calculate, and this is 3. Here this is again 1.2 volt, this is to be calculated and it is 2. So ये आ गया आपका 0.4 I1 and this is 0.6 ampere is I2. So दोनों का सम फिर से 1 ampere. See one again important thing, ये करंट 1 एम्पेयर आया, इसमें से इसमें गया 0.4 एम्पेयर और इसमें से गया 0.6 एम्पेयर. सो अगेन हम फिर यहाँ से देख पा रहे हैं कि जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उससे ज़्यादा करंट है. इसकी 3 ओम है तो इससे कम गया, इसकी 2 ओम है तो इससे ज़्यादा गया. नाउ लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. When a voltmeter is connected between 400 ohm resistor, the potential the voltmeter reaches 30 volt. अगर यहाँ जोड़ा गया voltmeter का एक किनारा और दूसरा यहाँ पे, it reaches 30 volt. So what will be the reading of this voltmeter when it is connected between A and B? So voltmeter remember it is a high resistance instrument, इसकी resistance बहुत ज़्यादा होती है तो let it be R. इसकी रेजिस्टेंस R है तो ये वोल्ट मीटर के बजाय यू कैन से कि मेरे पास 3 रजिस्टर हैं और ये वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी 400 है और इसकी 300. तो दे आर ज्वाइंट टू अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट. दे आर इन पैरेलल तो इनकी रेजिस्टेंस 400. दिस इज पॉइंट B, दिस इज C. तो रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C विल बी दे आर इन पैरेलल. सो 400 into R divided by 400 plus R. So this is the equivalent resistance. Potential difference between B and C it is given, ये है हमारा 30 वोल्ट. सो RBC कैलकुलेट कर लिया हमने. VBC is current into RBC. ये आप इसको ड्रॉ करते हैं. this is single register of resistance RBC. This is B, this is C. So this is 300 ohm and this is a battery.
of 60 volt. So potential difference between B and C, either you join connect series combination parallel combination of these two between B and C, या इसको अकेले को ले लीजिए, इस अकेले की रेजिस्टेंस इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर है. सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो रीड किया है वोल्ट मीटर ने, दैट इज 30 वोल्ट. एंड ये करंट आई इससे गया, ये करंट यही इससे जाएगा. सो ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी एंड इज 30 वोल्ट. तो ए और बी के बीच में भी 30 वोल्ट होगा. एज आई टोल्ड यू, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स. तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में भी, इट इज ए बी इज इक्वल टू आई करंट, और दिस इज resistance between A and B. This is 30 volt, this is I, this is 300, so it gives you current 0.1 ampere. इससे जाएगा 0.1, इससे जा रहा है तो इससे 0.1 ही जाएगा. So then VBC is I करंट जो इससे जाएगा वही से, so I into RBC. This is 30 volt given, this is 0.1 गुणा 400 R divided by 400 plus R. So from here you can calculate this relation. From here you can calculate value of R. So it gives value of R equal to 1200 ohm. So voltmeter की resistance, it is 1200 ohm. Now if this voltmeter is connected here, this is 300 ohm, ये voltmeter इसकी resistance 1200. Now ये अब यहाँ जोड़ दिया हमने. This is 400, this is cell or battery, this is 60 volt, this is 12. So these are in parallel. So in दोनों की resistance it will be 240. It will be 300 multiplied by 1200 divided by 300 plus 1200. So RAB is, ये दोनों both are in parallel. So you calculate resistance, RAB is equal to 240. So then total resistance, these two offer resistance 240, this is 400 ohm, and this cell. Now calculate current. Total resistance is 400 plus 240, these are in series. So current is 60 volt according to Ohm's law. Potential difference upon 240 plus 400, 640. So this is equal to 3 upon 32 ampere. This is the current. So current आ गया, इसमें कितना जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में potential difference you can calculate. So potential difference between A and B according to Ohm's law, it is I into RAB. This is 3 upon 32 multiplied by 240. It gives you 22.5 volt. So very important question. That's all about the series and parallel combination of resistor जो मुझे करवाना था. So next topic कल पढ़ेंगे हम. It is series and parallel combination of cells. So thank you for watching.